Now we shall be discussing, as you can see, ex post facto research as a concept. And this ex post facto research is also known as causal comparative research. We have already discussed about the experimental research and non-experimental research. We have also classified experimental research in terms of laboratory experiment and field experiments, and the non-experimental research as descriptive research, and there were other types which were discussed, such as content analysis, ethnography, and many more. And ex post facto research was categorized as the non-experimental research. So in one sense, we are discussing the types of experimental research, though the focus of the lecture is only about ex post facto research. So we shall learn, as you can see, ex post facto research as a concept, and which is also known as causal comparative research. The ex post facto research is a type of research in which the researcher identifies the possible causes behind an event or incident that has already taken place. This is the central idea कि हम कॉजल कंपैरेटिव या एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में करते क्या हैं, उन घटनाओं का अध्ययन करते हैं which has already taken place, जो घटना घट चुकी है. घटना या इवेंट या इंसिडेंट जो भी कहें, क्या है, इट हैज ऑलरेडी बीन टेकन प्लेस. तो हम लोग एक्सपेरिमेंट में जो करते हैं उससे ये कैसे रिवर्स है, हालांकि हम लोग लास्ट पार्ट में डिफ्रेंशिएट भी करेंगे. But the first aspect, the central theme is that in ex post facto research, we study those events, incident, etc., which has already taken place, which has already been taken place. As for example, the causes of delinquency, अपराधी. delinquency, delinquent child हम लोग जानते हैं, अपराधी बालक. The causes of delinquency may be identified by studying the delinquent child. As the children are already delinquent, they may be studied in order to identify the possible causes due to which the normal children became delinquent. तो एक एग्जाम्पल है. वैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे साइकोलॉजिकल स्टडीज़ में कैंसर वगैरह को लिया, फिर अल्कोहलिज्म या फिर टोबैको ईटिंग के फलस्वरूप हुआ, और फिर कैंसर जिनको हो चुका उनकी स्टडी किया, मतलब वो घटना घट चुकी है और उसके होने के रीजंस क्या है तलाशने के लिए जो हम रिसर्च करते हैं उसको एक्स फैक्टो रिसर्च कहते हैं. यहाँ चूँकि हम लोग एजुकेशन से एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसमें ले रहे हैं कि अपराधी जो बालक हो चुके हैं, डेलिक्वेंट चाइल्ड को हम सेलेक्ट करते हैं क्योंकि वो नॉर्मल चाइल्ड से डेलिक्वेंट हो चुके हैं. अब उनके अपराधी बनने में डेलिक्वेंट चाइल्ड होने के पीछे क्या कारण है, क्योंकि कोई जन्म से तो डेलिक्वेंट हो रहता नहीं. तो इस तरह की स्टडी कि पहले हम डेलिक्वेंट चिल्ड्रन को जो डेलिक्वेंट हो चुका है आइडेंटिफाई करते हैं और फिर डेलिक्वेंसी के कॉजेस को तलाशते हैं. इसी को एक्स पोस्ट फैक्टो या कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च कहते हैं. सो cause has already taken place. Sorry, the incident has already taken place, and by identifying or selecting the incident, we study in order to know the cause, and the research is known as ex post facto research.
तो हम समझ रहे हैं कि अब अपराधी बालक वाला एग्जाम्पल ऐसा है कि आपको समझने में सहूलियत होगी कि अपराधी बालक हो चुके हैं, घटना घट चुकी है। अब हम क्या कर रहे हैं कि अपराधी बालक को सेलेक्ट करके यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके अपराधी बालक होने के पीछे क्या क्या कारण है, और दैट स्टडी इज नोन एज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च या फिर कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। Researchers, as an expert fellow of the field, may guess certain reasons, मतलब ये डेलिक्वेंट होने के पीछे बहुत सारे रीजंस, आप कोई भी आदमी है जो उस फील्ड में काम करता है या जानता है अपराधी बालक कैसे बनते हैं, समाज, शिक्षा, इस सब के अनुभव के आधार पे तो बता देगा कि पेरेंटल क्वालिफिकेशन उसमें इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है, उसमें इलिटरेसी हो सकती है, उसमें जो पीर ग्रुप्स है वो फैक्टर्स हो सकते हैं, जो सराउंडिंग्स है वो हो सकते हैं, आदि आदि। सो द रिसर्चर एज एन एक्सपर्ट फेलो of the field may guess certain reasons as lack of discipline, parental care, social surrounding, peer effect, neighborhood socialization and etc. मतलब ये हम लोग वैसे भी जानते हैं कि हाइपोथेसिस कोई भी जो बनाता है दैट इज ऑल्सो बीइंग डिफाइंड एज द इंटेलिजेंट गेस। तो कुछ ना कुछ गेस रिसर्चर को करना होगा, और यदि कोई गेस ही आप नहीं कर सकते हैं तो फिर उस फील्ड में आप रिसर्च नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। तो एक रिसर्चर गेस करता है और गेस के बाद इन्वेस्टिगेट करता होगा, कैसे, आगे देखें। इन एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च द रिसर्चर प्रिडिक्ट्स ए कॉज ऑन द बेसिस ऑफ ए controlled effect, as it is not possible to make variation in effect due to its pre-occurrence. It is not possible to have a direct cause and effect relationship. मतलब डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की तरह इस नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के टाइप में जो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है नहीं कर सकते हैं, क्योंकि घटना तो घट चुकी है। वहाँ हम लोग क्या करते हैं, रेंडमाइज करते हैं, ग्रुप को इक्वेट करने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। यहाँ हम लोग वो सब काम नहीं कर सकते हैं। सो रीजन ex post facto research, the researcher predicts a cause on the basis of a controlled effect, as it is not possible to make variation in effect due to its pre-occurrence. It is not possible to have a direct cause and effect relationship. It is like effect cause relationship. जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट होता है। यहाँ चूंकि इफेक्ट ही पहले है तो इस स्टडी को ऐसे भी कह सकते हैं इफेक्ट एंड कॉज, मतलब इफेक्ट से हम लोग कॉज आइडेंटिफाई करते हैं। ये एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का है, और ये सब दीज आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट दैट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन योर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एंड लाइक दैट। So ex post facto research can be defined as an empirically, एक शब्द इसमें empirically, मतलब यहाँ ये थोड़ा सा इसका सोफिस्टिकेशन भी है। empirical डाटा चाहिए, that must be investigated and data must be obtained. So ex post facto research can be defined as an empirically based investigation which does not involve the researcher's direct control over the independent variables, because they have already led to effects which can no more manipulated. हम लोग जनरली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं किसको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो वेरिएबल हमारा ट्रीटमेंट वेरिएबल भी उसको कहते हैं। लेकिन यहाँ तो ट्रीटमेंट का कंसेप्ट ही नहीं है। मान लीजिए डेलिक्वेंसी हो चुकी है तो क्यों हुआ है, तो यहाँ न कंट्रोल का कंसेप्ट है और न मैनिपुलेशन का कंसेप्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, क्योंकि घटना तो घट चुकी है, वही बात कर रहा है। सो इट इज दैट इज इस एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इज एन empirically based investigation which does not involve the researcher's direct control. हम डाटा तो कलेक्ट करते हैं इसलिए इंपिरिकल कहेंगे इसको, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं वो सिर्फ कॉज
इफेक्ट से कॉज की तरफ आते हैं, इसलिए ना कंट्रोल का कंसेप्ट है ना मैनिपुलेशन का कंसेप्ट है. सो इट इज एन एम्पिरिकली बेस्ड इन्वेस्टिगेशन विच डज नॉट इन्वॉल्व द रिसर्चर्स डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो इसमें कंट्रोल संभव भी नहीं है, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी लेड टू इफेक्ट्स विच कैन नो मोर मैनिपुलेटेड. तो हम यहाँ मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इम्पिरिकली स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि डाटा कलेक्ट करेंगे, जानेंगे कि दिस इज द रीजन, ये भी रीजन है, ये भी रीजन है, तो सबसे वैलिड रीजन कौन है, वो आगे और क्लियर होगा. इन एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कंक्लूजन regarding the relationship between variables are made without intervening or manipulating the independent or varying the dependent variable. मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बढ़ने या घटने के कारण जो प्रभाव है, इसका अध्ययन तो इसमें संभव ही नहीं है. लेकिन और भी जो बीच के कंट्रोल वगैरह के वेरिएबल्स हैं उस पर भी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि घटना तो घट चुकी है, जिसको डेलिक्वेंट होना है वो हो चुका है, उसके क्या क्या कारण थे उनका हम साइंटिफिक अध्ययन करेंगे, एम्पिरिकल स्टडी करेंगे. सो दिस इज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च. अकॉर्डिंग टू लैंडमैन, एक नाम है लैंडमैन, अकॉर्डिंग टू लैंडमैन the term ex post facto is used to refer to an experiment in which a researcher, instead of finding a treatment, examines the effect of a naturally occurring treatment after it has occurred. So treatment यहाँ क्या कर रहा है कि the treatment due to which the effect has been caused. ट्रीटमेंट वहां भी है कि क्यों बना, जो जो कारण है वो सब ट्रीटमेंट ही है. इनके अनुसार, लैंडमैन के अनुसार, कि ट्रीटमेंट जिसकी वजह से कोई इफेक्ट ऐसा हुआ है का अध्ययन करता है. सो अकॉर्डिंग टू लैंडमैन द टर्म एक्स पोस्ट फैक्टो इज यूज्ड टू रेफर टू एन एक्सपेरिमेंट. एक एक्सपेरिमेंट है, लेकिन उसमें क्या करता है, इन विच रिसर्चर इंस्टीड ऑफ फाइंडिंग ए ट्रीटमेंट. अब ये ट्रीटमेंट हम दे ही नहीं रहे हैं कि इस ट्रीटमेंट से ये हो रहा है, क्योंकि ट्रीटमेंट तो ऑलरेडी, जिस ट्रीटमेंट की वजह से घटना घट चुकी है, इंसिडेंट हो चुका है, वो तो ऑलरेडी हो चुका है. दैट द रिसर्चर हैज नो कंट्रोल. एंड सो व्हाट द रिसर्चर डज, द रिसर्चर एग्जामिन्स द इफेक्ट ऑफ ए नेचुरली अकर्ड ट्रीटमेंट. जिस ट्रीटमेंट की वजह से, मतलब वे सारे कारण जिन कारणों के फलस्वरूप डेलिक्वेंसी का कॉज हुआ है, वो सारे को ट्रीटमेंट यहाँ कह रहा है आफ्टर इट हैज अकर्ड. सो इसमें द डिफरेंस एज पर द लैंडमाइन यू कैन अंडरस्टैंड. द टर्म इज एक्स पोस्ट फैक्टो इज यूज्ड टू रेफर टू एन एक्सपेरिमेंट. यस, इट इज एन एक्सपेरिमेंट, बट instead of treatment, finding a treatment, examines the effect of a naturally occurred treatment. मतलब naturally occurred treatment हो गया है, जिसकी वजह से ये इफेक्ट हुआ है after it has occurred. In fact, it is a study that attempts to discover pre-existing जो पहले से एग्जिस्ट कर ही रहा है. वंस यू सेलेक्ट द प्रॉब्लम, वंस यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, प्री एग्जिस्टिंग कॉजल इफेक्ट. इन फैक्ट, इट इज ए स्टडी दैट अटेम्प्ट्स टू डिस्कवर द प्री एग्जिस्टिंग कॉजल कंडीशन बिटवीन ग्रुप्स. वो कॉजल कंडीशन तो ऑलरेडी है. द मेजर लिमिटेशन of ex post facto research is the conclusion as two factors go together. One is the cause and the other the effect. क्योंकि एक इफेक्ट तो ऑलरेडी कॉज हो चुका है, मतलब उसके कॉज भी हो चुके हैं, इफेक्ट भी हो चुका है, लेकिन इफेक्ट से कॉज ए कर सकते हैं,
तो इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है कि आपके बस में तो ट्रीटमेंट है नहीं, इफेक्ट मेजर करने का है नहीं, क्योंकि जो हो चुका है उसी का अध्ययन करना है. सो द मेजर लिमिटेशन ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इज द कंक्लूजन as two factors together as two factors go together, and what are those? Cause and effect. तो ये कंक्लूजन करने में दिक्कत है कि व्हाट आर द रीजंस, और ये क्यों हुआ है इफेक्ट, विच इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, वेरी साइंटिफिक with respect to the experimental research. So in ex post facto research the dependent variable is effect. अब ये उल्टा होगा, ये effect is the dependent variable. In ex post facto research in post facto research the dependent variable is effect and the probable cause become the independent variable. और ये कॉज जो प्रोबेबल है, रिसर्चर गेस करता है फिर उसको इन्वेस्टिगेट करता है, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. इट्स आल्सो ए मेजर डिफरेंस. इन द एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च द मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स occurs first and thereafter its effect become known to the investigator. मतलब ये कह रहा है कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसका मैनिफेस्टेशन पहले हो जाता है, उसका मैनिफेस्टेशन हो जाता है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? कॉज. ठीक है. Since the independent variables have already occurred, the investigator has no direct control over such variables है, तो इसका limitations भी है. This is the reason due to which the purposeful manipulation of the independent variable becomes difficult. Yes, ex post facto research may be defined as, एक वैसे ये definition जैसा ही था जिसमें हमने attributes को निकाला. There may be another definition. Ex post facto research is that empirical investigation in which the investigator draws the inference regarding the relationship between variables on the basis of such independent variables whose manifestations have already occurred. In this type of research, the investigator has no direct control over the independent variables because they occur much prior to producing their effects. तो ये तो ठीक है, उस पर कोई बस ही नहीं, कोई कंट्रोल नहीं कर सकते. Let us take an example. Suppose the investigator wants to study the major determinants of academic achievement among secondary school students. आफ्टर ए रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, वो स्टडी तो करनी पड़ेगी क्योंकि डाटा कहाँ से लगे, ये घटना घट चुकी है तो उसमें बहुत सारे लिटरेचर को आपको सर्च करना पड़ेगा. तो रिसर्चर भी लिटरेचर सर्च कर रहा है. द रिसर्चर कम्स टू नो दैट देयर आर 3 फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एकेडमिक अचीवमेंट. दीज फैक्टर्स आर, मतलब एक तो आपने प्रॉब्लम समझ लिया कि व्हाट इज द प्रॉब्लम. आप एकेडमिक अचीवमेंट, आपकी स्टडी का विषय है और आप क्या करते हैं, कैसे अध्ययन करते हैं. एकेडमिक अचीवमेंट अमॉन्ग सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स इज योर प्रॉब्लम. और रिसर्चर रिव्यू जो करता है उस रिव्यू के आधार पे वो आइडेंटिफाई करता है, मतलब एजम्पशन करता है. हमने अभी कहा ही कि जो हाइपोथेसिस है वो क्या है, दैट इज़ ऑल्सो एन इंटेलिजेंट गेस. एंड हाइपोथेसिस बनाने के बहुत सारे बेसिस हैं, रिव्यू करने के बहुत सारे कॉजेज हैं, लेकिन बैकग्राउंड जब तक नहीं हो तब तक हाइपोथेसिस ड्रा नहीं किया जा सकता है. और जब एक्सटेंसिव स्टडी नहीं हो तो प्रॉब्लम
आइडेंटिफाई करना भी डिफ़िकल्ट और प्रॉब्लम के अगेंस्ट हाइपोथेसिस बनाना भी डिफ़िकल्ट है। लिहाजा हम ये मान के चल रहे हैं कि रिसर्चर ने रिव्यू की स्टडी की है और स्टडी के फलस्वरूप उस विषय वस्तु का उसको ऑप्टिमम रिसर्च नॉलेज है, इस पे किस तरह के काम हुए हैं, क्या फाइंडिंग्स हैं, आदि आदि। सो जो डेलिक्वेंट चाइल्ड है या फिर यहाँ जो प्रॉब्लम दूसरा है, डेलिक्वेंट तो वहाँ एग्जाम्पल हमने लिया, यहाँ है कि एकेडमिक अचीवमेंट एवं के किसका हायर है, कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ हाई एकेडमिक अचीवमेंट एंड लाइक लो एकेडमिक अचीवमेंट एंड लाइक दैट द फैक्टर्स आर। तो 3 फैक्टर आइडेंटिफाई करता है स्टडी से कि ये दिस इज ए कॉज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इज ए कॉज दैट is responsible for academic achievement. Another aspect he selects there are 3 factors academic achievement. Factors are motivation and intelligence. मतलब रिसर्चर ने एक्सटेंसिव स्टडी के आधार पे ये पाया कि these 3 factors are the cause and the effect has already taken place, that is the academic achievement. मतलब socio economic status, motivation and intelligence are the causes due to which the effect of academic achievement has taken place. ये रिसर्च से आइडेंटिफाई किया, अपने अनुभव से आप आइडेंटिफाई किया। लेट अस सी इंटेलिजेंस। देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अब वो आप देख सकते हैं, वो द इन्वेस्टिगेटर फाइंड्स दैट देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ अपर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। अब इसमें 3 ग्रुप बना दिया, ये एक सोशियो इकोनॉमिक अपर ग्रुप का, एक मिडिल ग्रुप का और एक लोअर ग्रुप का। मान लीजिए रिसर्चर ने 3 ग्रुप बनाया। आइडेंटिफाई कर लिया रिसर्चर ने कि एकेडमिक अचीवमेंट की जो घटना घटी है उसका जो संभावित कारण है वो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, और रिसर्चर ने फर्दर एक अपने अध्ययन को बढ़ाने के लिए अपर, मिडिल और लोअर ग्रुप में ये बांट दिया ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। और इट्स ए वेल नोट कंसेप्ट जिस वेरिएबल पे बहुत सारे काम हो चुके हैं, इस पर बहुत सारे टूल्स वगैरह भी हैं। खैर उससे यहाँ लेना देना नहीं है। द अपर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड द मिडिल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ग्रुप्स स्टूडेंट अचीव हायर देन द लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ग्रुप। ये मान लीजिए कि ऐसा डाटा कलेक्शन के फलस्वरूप मिला। Finally, the researcher concludes that socio-economic status is one of the determinants of academic achievement. और तब आप तो ये देखिए स्टडी हमने कैसे किया कि एकेडमिक अचीवमेंट ऊपर लिखते हैं, जो यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है एकेडमिक अचीवमेंट, जो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये स्टडी एक घटना घट चुकी है, कॉज है, उसके इफेक्ट है, और उस इफेक्ट के लिए हम जो रिसर्चर ने अपने अनुभव और लिटरेचर से हाइपोथेसिस बनाया, वो ये बनाया कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हैज इट्स बियरिंग ऑन एकेडमिक अचीवमेंट, और फिर और भी कि इस ग्रुप का सुपीरियर है उस ग्रुप का। सो देयर आर मेनी वेज ऑफ हाइपोथेसाइजिंग द कंसेप्ट। अब ये फाइंडिंग आ गई। द रिसर्चर में फर्दर फाइंड दैट higher motivation and higher intelligence have their bearing on academic achievement। और इस सब वेरिएबल का भी कर सकता है कि हाई मोटिवेटेड ग्रुप है, लो मोटिवेटेड ग्रुप है, और देख सकता है कि किसका है। तो दिस में भी ये रीजन यहाँ कर सकता है, हाई इंटेलिजेंट ग्रुप एंड लो इंटेलिजेंट ग्रुप। देयर मे बी मोर देन 2 ग्रुप्स एज वेल, बट दैट इज नॉट द पर्पस is to make you learn. May further find that higher motivation and higher intelligence have their bearing on academic achievement. In this example, the nature of
An ex post facto study is obvious. The dependent variable is the academic achievement, and the independent variables are socioeconomic status, motivation and intelligence. चूंकि हम अध्ययन क्या कर रहे हैं, एकेडमिक अचीवमेंट पर इन तीनों वेरिएबल का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये तो ऑब्वियस है कि ये तीन जो वेरिएबल हैं जो हमने यहाँ लिए वो इंडिपेंडेंट है, एकेडमिक अचीवमेंट से प्रभावित नहीं होते हैं। ये तीनों एकेडमिक अचीवमेंट को अलग अलग प्रभावित करते हैं, तो ये तो क्लियर है। इट इज ऑल्सो टू लुक इनटू that the researcher has no direct control over these independent variables. अब इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे भी कोई कंट्रोल नहीं है उनका, मतलब ये नहीं है कि आपको ग्रुप बनाना है, आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको अपनी टेस्टिंग के आधार पे कुछ करना है, क्योंकि ये घटना तो घट चुकी है। खैर, मुख्य रूप से ये कि इन एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, दैट इज a type of non-experimental research which is also called as causal comparative research. We start to work by identifying the effect first, and afterwards we try to know the causes of the effect that has already taken place. लेकिन उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसमें हम क्या करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यहाँ क्या करते हैं, इफेक्ट एंड कॉज रिलेशनशिप। फिर इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि घटना घट चुकी है। तो इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो एक तो याद रखना है कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च एक नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, इसको कॉजल कंपैरेटिव भी कहते हैं। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, इसमें कंट्रोल की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि जो घटना पहले घट गई है उसके संभावित कारण का पता अध्ययन के क्रम में करते हैं। बट सारा अध्ययन सिर्फ एक्सपेरिमेंटल मेथड से संभव भी नहीं है, एक तो एक्सपेंसिव भी है, टाइम टेकिंग भी है, और बहुत सारा सोशल इशूज़ या सोशल एस्पेक्ट की ऐसी स्टडी है which is possible only through ex post facto research. So it has its merit and limitations as well. But in this part of the lecture, our focus was to ex post facto research as a concept जिसको समझना था, and hopefully we have succeed. Thank you.